Jai Hind and good morning to one and all present here. I am Dr. Sarika, a senior faculty member and a startup in charge of Subharti College of Management and Commerce. Welcomes you all. I am extremely glad to have all of you gathered in this extraordinary venue for an exciting day full of insights. It is our tradition to light the lamp and pray in front of Ma Saraswati before starting the event. I request all the dignitaries and all respected HOIs to gather on stage for lighting the lamp. I request the students of fine arts to pray in front of Ma Saraswati. It is our folklore to honor our guest with a planter as a token of gratitude. I request our convener, Dr. R.K. Ghai, sir, and Pramod Kumar Sinha, sir, and it also represents a wish for sustainable future. The title of today's guest lecture is Startup, Role of Higher Education Institution. Startups are key components of a national innovation system and have contributed to sustainable development. This is because of their ability to create employment opportunities and contribute to the national gross domestic product. Hence, universities across the world have identified the importance of entrepreneurship training for students to help and enhance their capability to develop their own startups. So today, we have Dr. Pramod Kumar Sinha, a versatile personality, is with us to insight us about startup, role of higher education institution. To introduce Dr. Pramod Kumar Sinha, he has a 360-degree journey of working of diverse sectors in Government of India, interaction with most of 33 ministries of Government of India, public sector enterprise, global MNCs, and employer association in areas from public policy to vision, mission, corporate plan and strategy, coordination of national scheme with fund and targets management, monitoring and evaluation, expansion programs in conjunction with top management team, guiding leadership team of HR, finance, legal marketing in most sectors including FMCG, telecom, energy, utilities, development sectors, health, CSR, SDGs, entrepreneurship, agriculture, etc. All aspects of communication and corporate affairs, leadership of top management team, budgeting, project formulation and monitoring, multi-location business issues, due diligence processes, market research, sales and channel management, advising on tender-related issues, etc. About his qualification, he has MBA full-time and PhD in management. The area of his PhD is sustainability of startups in India. Additionally, he had professional association with the top institutions for residential courses, programs like IIM Kolkata and NITIE Mumbai for management development, ISB Hyderabad for executive coaching for CEOs, top management by Dr. Marshall, sustained competitive advantage leadership by Professor Deepak Jain, Dean Kellogg University at business location of an MNC, etc., to be quote a few. About his professional journey, he has more than 3 decades of central public sector enterprise, Government of India, MNCs, Indian private sectors, voluntary sectors, and employers association. All formats of working
domain, a progressive journey of more than 3 decades, started as a management trainee in manufacturing unit, followed by corporate office to DY director level entry in Government of India, selected through UPSC. At Finance Division of Department of Public Enterprise to top management members in MNCs, Indian companies in diverse sectors. The professional assignments in government sectors included from public policy to advocacy, project implementation, concept to cabinet notes, field monitoring, parliamentary motions, questions, debates, debate preparedness, disinvestment issues, corporate affairs, communication, media and press, etc., besides interaction with more than 30 ministries and 200 public enterprises on related matters. He moved to private sector also to serve as a country head. Services of a global 100 Fortune MNC in oil and gas sector to US MNC in telecom and utility sectors, to assign of chief HR and corporate affairs and top management member of a group of companies of Indian private sector. He has been a jury that evaluates and decides Rajbhasha Kirti Puraskar of Rajbhasha Vibhag, Ministry of Home Affairs, Government of India, for PSC and government. Organizations for a couple of years, he has been in the advisory boards of monthly magazine Kaleidoscope, Lung Care Health Foundation India, GLA Universities Board of Studies, Womenovator, etc., published by many articles on diverse issues. So we are privileged to have you with us, sir. Sir, I request you to come on the stage and start your presentation. ये हमारे लिए बहुत ही खुशी और सौभाग्य भी है कि जो मैं आपके इस यूनिवर्सिटी के प्रांगण में आज आप सबके बीच उपस्थित हो पाया हूँ। मैं आपके संस्थान के चांसलर श्रीमती स्तुति नारायण कक्कड़ जी, जो एक IAS अधिकारी भी रही हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण विभागों का नेतृत्व भी किया है। सौभाग्य से कुछ ऐसे भी डिपार्टमेंट थे जिसमें हम दोनों आदमी ने काम किया है। वर्ष अलग रहे हैं, मुद्दे सेम रहे हैं। मैं आपके वाइस चांसलर जी का भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इस विषय पर एक सोच रखी, और आपके डायरेक्टर एंड डीन डॉक्टर RK घई साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने ये सोचा कि स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप जैसे विषयों पे विशेष चिंतन की आवश्यकता है। जब हम इस विषय पे डिस्कस करेंगे तो आपको भी धीरे धीरे उस संदर्भ में ले जाएंगे जो इस मुद्दे को और भी आप सभी युवाओं को गंभीरता से सोचने पे शायद मजबूर करे। और मुझे खुशी होगी आप में से अगर 1% उपस्थित युवक इस विषय को अपना पाएं। आज हमारा देश जिस दौर से गुजर रहा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जिस सपने को लेकर चल रहे हैं कि भारत को विश्व गुरु बनना है, 30 ट्रिलियन की एक इकोनॉमी बननी है, ये सब तभी संभव है जब आज की युवा पीढ़ी इस सपने को संजोकर आगे बढ़ाए। हम जो है जिस जगह आज खड़े हैं, हम मार्गदर्शन कर सकते हैं, दिशा निर्देशन कर सकते हैं, आपके लिए संरक्षक बन सकते हैं, लेकिन जहाँ कार्य करने की बात है, नए आविष्कार करने की बात है, अनुसंधान करने की बात है, नए इकाइयों को अपनाने और विकास करने की बात है, ये जिम्मेदारी युवा पीढ़ी को निभानी होगी। हमें बहुत ही खुशी और गर्व है कि भारत
विश्व में युवा पीढ़ी में अग्रणी है। हमारी जनता लगभग 50% से ऊपर युवा पीढ़ी और महिलाओं से जुड़ी हुई हैं। इस बहुत बड़ी संख्या को अगर हम आगे बढ़ा पाएँ तो करीब 70 से 100 करोड़ की ये जनता पूरे विश्व को एक नया रास्ता दिखा सकती है। हमारा एक छोटा स्टेट कई कंट्रियों से बड़ा है। सो आपके पास अवसर भी हैं, आपके पास चुनौतियां भी हैं। अवसर को समझना है, चुनौतियों से घबराना नहीं है। हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड समाधान की बात सोचनी है कि कोई भी चुनौती होगी तो समाधान कैसे होंगे। जिस वक्त आप समाधान की बात सोचेंगे, आप नए अनुसंधान की बात सोचेंगे। जिस वक्त आप समाधान की बात सोचेंगे, नए तरीके की बात सोचेंगे। जिस वक्त आप समाधान की बात सोचेंगे, नए प्रोसेस डेवलपमेंट की बात सोचेंगे। जिस वक्त आप समाधान की बात सोचेंगे, नए प्रोडक्ट लाने की बात सोचेंगे, नए सर्विसेज लाने की बात सोचेंगे। और अगर आप पूरे भारत का डेमोग्राफी का गहन अध्ययन कर पाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि विकास की दर और धारा कुछ शहरों तक ही सीमित रह पाई है। उसका क्या कारण है, क्या वजह है जब हमारी जनता जो आज भी 65 to 70% ग्रामीण और ग्राम से जुड़े हुए जगहों पे सीमित है, तो विकास की दर वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाई। यह एक बहुत बड़ा अवसर सभी युवाओं के लिए है। हमारे प्रोडक्ट, सर्विसेज, रिसोर्सेज जो मोबिलाइज करनी है, इन सभी रूरल एरियाज, सब अर्बन एरियाज की ओर कैसे जाए, इस पर गहन चिंतन का विषय है। इन्हीं सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जो आज का विषय है कि स्टार्टअप्स की क्या भूमिका होगी, एंटरप्रेन्योरशिप की क्या भूमिका होगी, किस तरह के एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स की हमें आवश्यकता होगी, और स्वामी विवेकानंद जैसे इस यूनिवर्सिटी की क्या भूमिका होगी जो एक हायर एजुकेशन की तरह रोल मॉडल का कार्य कर सके। उस विषय पर भी चर्चा करेंगे। सो इन्हीं शब्दों के साथ हम सभी डीन ऑफ स्कूल्स को अपनी ओर से धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इंटरेस्ट लिया और यहाँ उपस्थित होकर हमारे बीच इस चर्चा का भाग बन पा रहे हैं। आज का जो संवाद होगा, कुछ विशेष मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। जब आज बात होती है स्टार्टअप की, इंडस्ट्री की, तो हमारा देश सिर्फ शब्दों में विश्वगुरु नहीं रहा। एक समय था जब नालंदा विश्वविद्यालय जैसे संस्थान रहे जहां पूरे विश्व से लोग शिक्षा और तकनीकी ग्रहण करने के लिए आते थे। हमारे बीच स्वामी विवेकानंद जी जैसे गुरु रहे जिन्होंने यूनाइटेड नेशन के फोरम पे शिकागो में जब अपना स्पीच दिया तो पूरा वर्ल्ड स्पीचलेस था। और जो आज भारतीय संस्कृति की बात होती है तो उन्होंने उन दिनों हिंदुइज्म का डेफिनेशन दिया था। हिंदुइज्म इज़ वे ऑफ लिविंग। पूरे विश्व में कभी किसी ने इस तरह के परिभाषा की कल्पना भी नहीं की होगी। यही वजह है कि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। ये स्वामी विवेकानंद के उन परिभाषा का एक बहुत छोटा स्वरूप है। ये आप सभी को गर्व और स्वाभिमान होना चाहिए कि आप उसी भारत का हिस्सा हैं, उसी भारत के नागरिक हैं जहां एक ऐसे भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने जिनकी तुलना आज तक किसी ने नहीं कर पाई। एग्जामिनी इज बेटर दैन एग्जामिनर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the only person in history where a foreigner as an examiner has written in his copy,
एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। आज भी वो प्रेसिडेंसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के उसमें संग्रहालय में रखा गया है। सो आपको गर्व होना चाहिए कि आपके बीच ऐसे प्रतिभा वाले लोग भी रहें जिन्होंने सिर्फ भारत का ही नहीं विश्व का सम्मान किया, विद्यार्थी समूह का सम्मान किया। बात जब हम करेंगे औद्योगिकरण की, तो ऐसा नहीं कि औद्योगिकरण हमारे स्वतंत्रता के बाद ही हुआ। ये दौर शुरू से चलता रहा है, पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलती रही है, और इसी वजह से हम जर्नी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एक ग्रोथ हिस्ट्री पे एक संक्षेप में बात करेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि यूथ ऑफ इंडिया, जो आपने बताया कि इतनी बड़ी संख्या है, वो क्या कर सकती है, कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी जो कहा करते थे कि सपना देखा कीजिए, तो सपने आपको देखने हैं। आज जो युवक हमारे बीच हैं, उन सभी से हमारा विशेष अनुरोध होगा कि आप अपनी पढ़ाई के अलावा इस विषय पे भी सोचें कि आपके पढ़ाई का क्या उद्देश्य है, आपके माता पिता के प्रति क्या उद्देश्य है, आपके समाज के प्रति क्या उद्देश्य है, आपने इस संस्थान के प्रति क्या उद्देश्य है, आपका अपने प्रति क्या उद्देश्य है। जब तक इन बातों का आप गहन अध्ययन नहीं करेंगे, जो एक साधारण परिभाषा है ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इसको आप ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। सिर्फ ऑर्डिनरी के आगे एक एक्स्ट्रा वर्ड लिखने से वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाता है, बट इस पे एक गहन चिंतन की आवश्यकता है कि कैसे असाधारण बना जा सकता है साधारण से। उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि ये मनुष्य का जीवन किस लिए दिया गया है। आज आप इस संस्थान में आए हैं तो आपके माता पिता ने कितनी परिश्रम की होगी, परिश्रम से ही आपके पैसे हॉस्टल के कॉलेज के खर्च भर रहे होंगे। उस परिश्रम का सिर्फ ये परिणाम नहीं है कि आप उनको अच्छी जॉब मिले, एक अच्छा नागरिक भी बने, और ये साथ साथ आपको एक बड़ा ही अच्छा सुअवसर है कि बहुत सारी स्कीम्स सुविधाएं आपके कॉलेज भी मुहैया करा रही है। इनक्यूबेशन सेंटर जैसे सुविधाएं भी आपको ये यूनिवर्सिटी दे रही है। तो आप समझें कि स्टार्टअप्स का क्या रोल होगा, एंटरप्रेन्योरशिप का क्या रोल होगा, इनक्यूबेशन सेंटर्स कैसे आपको मदद कर सकते हैं। फिर हम चर्चा करेंगे स्टार्टअप्स पे। आज के संदर्भ में स्टार्टअप का क्या रोल है, क्या परिभाषा है, स्टार्टअप के रिकॉग्निशन जो भारतीय संस्थानों से किए जाते हैं उसके क्या फ़ायदे हैं, क्यों किए जाते हैं। जैसे हमारे मनुष्य के जीवन में जन्म से लेकर युवावस्था और बुढ़ापा तक विभिन्न क्षण आते हैं, उसी तरह से स्टार्टअप की एक लाइफ साइकिल होती है। उस पर भी चर्चा करेंगे कि स्टार्टअप के लाइफ साइकिल में किस तरह के दौर आते हैं, किस तरह की समस्याएं आती हैं, किस तरह की चुनौतियां आती हैं, और क्या अवसर भी आते हैं। कैसे एक छोटी सोच एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का रूप ले सकता है। क्या ऐसे लक्षण होने चाहिए जो आपको एक सफल स्टार्टअप बनाने में मदद करेंगे, या जिसकी वजह से आपकी विफलता का कारण बन सकता है, आपके असफलता का कारण बन सकता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सस्टेन करना, मजबूत बना रहना हर तरह से बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए आवश्यक है कि एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल हो। वो आपके एकेडमिक इंस्टीट्यूशन पे भी लागू होता है, आपके फार्मेसी पे भी लागू होता है, आपके इंजीनियरिंग पे भी लागू होता है, आपके हर विभाग पे भी लागू होता है। और साथ साथ हम एक ओवरव्यू पे भी बात करेंगे कि गवर्नमेंट की क्या क्या सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से स्कीम्स का फ़ायदा लिया जा सकता है। और साथ साथ हायर एजुकेशंस किस तरह से आपके इन सपनाओं को और भी सुदृढ़ कर सकता है। जैसा आप देख रहे होंगे, जब जर्नी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात हो तो कंट्री में जमशेद जी टाटा से बढ़कर कोई दूसरा नाम किसी के जहन में नहीं आएगा। वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनकी सोच ने टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी की नींव रखी, और सिर्फ नींव उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन की नहीं रखी, भारत के लिए रखी थी। वो दौर था जब
इस तरह की सुविधाएं, संसाधन उपलब्ध नहीं थे। और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री का जो उनके प्रति जो विचार रहा वो आप पढ़ सकते हैं। When you have to give the lead in action, lead in ideas, a lead which does not fit very climate of opinion, जो आमतौर पर संभव नहीं है, that is true courage, that is physical or mental or spiritual, call it what you like, and it is type of courage and vision that जमशेदजी टाटा showed। उस समय जब हमें लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होते थे इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, कोई भी स्टील इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, बहुत ही लंबा पीरियड होता था उसको डेवलप करने के लिए, संसाधनों की कमी थी। तब जमशेदजी टाटा जैसे व्यक्तित्व आगे बढ़े और उन्होंने इसकी स्थापना की। इट इज़ राइट दैट वी शुड ऑनर हिज मेमोरी एंड रिमेंबर हिम एज वन ऑफ द बिग फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। आप सभी जो यहाँ उपस्थित हैं, शायद आपको मालूम हो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री को फादर ऑफ द मॉडर्न टेम्पल भी कहा जाता रहा है। उन्होंने पहले ये सोच रखी थी, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ने, कि पब्लिक सेक्टर्स इस कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक ऐसी नींव रख सकते हैं जो पूरे देश में हो सकता है, जहाँ जिसके माध्यम से रीजनल डेवलपमेंट्स किए जा सकते हैं, जिसके माध्यम से लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड वाले इंडस्ट्रीज लाई जा सकती हैं। और यही वजह रहा कि जो शुरुआत में 4 पब्लिक सेक्टर आए, आज 240 से ऊपर पब्लिक सेक्टर्स हैं, और जिन्होंने एक भारत में बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट की, जिसके वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक गति मिली। और इन्होंने सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही नहीं, स्पेस, डिफेंस, सारे क्षेत्रों में जहां भारत को सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत थी, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की ज़रूरत थी, उन सभी क्षेत्रों में पब्लिक सेक्टर्स की नींव रखी गई, संरचना रखी गई, सोच रखी गई। आज के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जब से इन्होंने प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभाली है, देश के विकास के साथ साथ इन्होंने विशेष बल दिया है कि युवा पीढ़ी को कैसे एक सूत्र में लाया जाए, कैसे उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए। I see startups, technology and innovation as exciting and effective instruments for India's transformation। So हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की ये सोच है, और बहुत ही सही सोच भी है। जैसा मैंने आपको बताया कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री टुडे इज ऑफ यूथ्स। So youths can only, along with the women, can be the engine of growth. They can only transform this India into any level which the world will never think। तीसरे मैंने रतन टाटा जी का संदर्भ लिया। रतन टाटा जी एक ऐसे व्यक्तित्व रहे जिन्होंने जब रतन टाटा ग्रुप का चार्ज लिया तो उन्होंने अपने दौर में प्रॉफिटेबिलिटी को 50% बढ़ाई, टर्नओवर को बढ़ाई, और स्टार्टअप्स के लिए भी वो जब भी अवसर मिलता है वो हमेशा मदद करते रहते हैं। उनकी ये सोच रही है, आई स्ट्रांगली बिलीव इन योर आइडिया, अ गुड आइडिया इज़ वन दैट मेक ए डिफरेंस टू पीपल्स लाइफ। जो स्टार्टअप की नींव है या सोच है, कल जो आप आज जो आपको सोचनी है, करनी है, एक ऐसे संरचना को लाएं जिससे आप अपनी सोसाइटी को और बेहतर कर सके, कुछ ऐसे प्रोडक्ट और सर्विस दें जो आज उपलब्ध नहीं है और जो आने वाले कल की ज़रूरत है। जैसा आपको बताया मैंने, न्यू फर्म्स की क्यों बात होती है, स्टार्टअप की क्यों बात होती है, क्योंकि दे कम विथ इनोवेशन ट्रैजेक्टरी। और कोई भी इकोनॉमी जब तक ऐसे नए उपक्रमों की संरचना नहीं होती रहेगी, स्टैग्नेट हो जाती है। बदलाव के लिए ये ज़रूरी है कि नई सोच आए, नए उपक्रम आए, नए प्रोडक्ट और सर्विसेज मार्केट में आते रहें, कम्पिटिटिव चैलेंज बना रहे। इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत हैं, आप सभी पूरी तरह से जागरूक हैं, चाहे वो टाटा ग्रुप हो, बिरला ग्रुप हो, महिंद्रा ग्रुप हो,
ये सभी अपने पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ की वजह से एक लीडरशिप दे रहे हैं। आपके लिए ये सब रोल मॉडल हैं। आप सोच सकते हैं कि जब वो लोग बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते हैं। ये आपके रोल मॉडल हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि उन्होंने जीवन में किस दौर में कैसे संघर्ष किया और किस तरह उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन को इस रूपरेखा में लाकर खड़ा किया। ये आपके सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। कई बार बात होती है कि हमारा परिवार का व्यवसाय है। आपको खुशी भी होगी और कुछ लोगों को शायद सरप्राइज भी हो कि फैमिली रन बिजनेस earned around 14 to 24% of annualized returns on stock exchange, जो एक बहुत ही बड़ी और अच्छी उपलब्धि है। और इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 70 लाख करोड़ के बराबर है। तो कुछ लोग जो ये सोचते हैं कि फैमिली बिजनेस को बढ़ाया नहीं जा सकता है या वो एक अच्छा काम नहीं है, तो आपको शायद सोच बदलनी होगी। बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन ये हमारी कंट्री के जीडीपी को देते हैं। क्लोज टू 79% ऑफ द इंडियन जीडीपी। जहाँ तक इनोवेशन और डेवलपमेंट की बात है, मेरा सौभाग्य रहा, मैं उस दौर का भी हिस्सा रहा भारत सरकार में, अन्य उपक्रमों में भी। और जैसा कि बताया कि I was born in an industrial township, first power sector of the country। तो मैंने ये देखा हुआ है। My father was also a government servant। मैंने ये देखा हुआ है कि हैव और हैव नॉट्स में क्या एग्जैक्ट डेफिनेशन है। एज ए चाइल्ड मैंने देखा हुआ है। मैं उस टाउनशिप में रह के ये देखा करता था कि बीइंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट हमें क्या सुविधाएं हैं और कॉलोनी के ठीक बाहर जो आदिवासी होते थे उनकी क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। पूरे तन पे ढकने के लिए कपड़े तक नहीं होते थे उनके पास। तो एज ए चाइल्ड मैंने ये देखा हुआ है। और शायद यही वजह भी रहा कि जब भी मैं जिस संस्थान में, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो या मेरे व्यवसाय वो नौकरी का क्षेत्र हो, हर जगह मैंने उसको गंभीरता से लिया। हर जगह मैंने उसको गंभीरता से लिया। हमने कभी भी अनवांटेड एक्सपेंसेस फादर का न खर्च करने की अपनी ओर से पूरा प्रयास किया। जहाँ हॉस्टल में रहे या यूनिवर्सिटी में रहे, चाहे बीआईटी मेसरा हो या किसी इंस्टीट्यूशन में हो, 99% मैंने लाइब्रेरी को यूज़ किया। 1% कभी मैं किताब खरीदा होगा। ये आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि पेरेंट्स के हार्ड मनी का आपको पूरा सम्मान करना है। और समाज में हर वर्ग के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, वो किस तरह से संसाधन और साधन के अभाव में जी रहे हैं और फिर भी उनमें से कई बच्चे अच्छा कैसे कर पाते हैं, सीख लेने की आवश्यकता है। सिलिकॉन सिटी, सिलिकॉन वैली जो अमेरिका की रही, उसने हमारे टेक स्टार्टअप्स को काफ़ी इंस्पायर किया और उसका ही एक छोटा रूप हमारी बेंगलोर सिटी में आया, जिसने इंडियन स्टार्टअप्स इन टेक्नोलॉजी को काफ़ी प्रमोट किया। लोग काफ़ी बढ़ के आए। तो वी लर्न फ्रॉम ग्लोबल एक्सपीरियंस ऑल्सो, वी लर्न फ्रॉम लोकल एक्सपीरियंस ऑल्सो। एज ए स्टूडेंट you should always be open to learn. Environment will be before you, opportunities will be before you, campus life will be before you. You will have to think कि ये 2 साल या 4 साल का कैंपस लाइफ आप क्या अर्न करके जाएंगे जो पूरी ज़िंदगी आपको सहयोग करेगी। इट इज़ बिफोर यू। देश में बदलाव आया, इंटरनेट का भी दौर आया 90s में। हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी ने कंप्यूटराइजेशन की सोच रखी। टेलीकॉम्स आए, फ़ोन्स आए, MTNL वगैरह जो आए, उन्हीं लोगों की सोच थी कि देश में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और वो कैसे लाया जाए। जो भी उसके बाद नेतृत्व में बदलाव आया, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रही हो, सब ने उसको आगे बढ़ाया। सब ने उसको एक के बाद एक सोच रखी और ये सारे इम्पिटस इंडियन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते रहे।
आप लोग सुनते होंगे प्रधानमंत्री जी ने अमृत भारत की बात की, अमृत भारत की कल्पना की, अमृत भारत की सोच रखी। ये सब बातें मैं क्यों आपके सामने रख रहा हूँ? ये सब आपके आधार बनेंगे सोच की। किसी भी संरचना या संस्थान की भूमिका आपकी सोच रखती है। अगर आप अपने सोच में परिपक्व होंगे तो जो भी काम करेंगे आप, जो भी निर्णय लेंगे आप, उस पर आप ठहरेंगे, रिग्रेट नहीं करेंगे। गलतियां होंगी, सीखेंगे। एक गलती, दो गलती, तीन गलती, चौथी गलती में आप सफलता के चरण पे आएंगे। तो ये सारे बैकग्राउंड मैं इसलिए आपके बीच में रख रहा हूँ स्टार्टअप के मुद्दे पे आने से पहले, कि आपकी सोच, ये जो एनवायरनमेंट है हमारा, सिमुलेट हो। उस सोच विषय पे आने से पहले आप सिमुलेट हो कि ये सब क्यों आवश्यक है हमारे किसी विशेष परिवेश में। उन्होंने 5 पिलर जो रखा हुआ, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, डिमांड एंड वाइब्रेंट डेमोग्राफी, ये क्यों रखी? डेमोग्राफी की बात मैंने आपसे कर ली। वाइब्रेंट इसलिए उन्होंने रखी कि हमारे यूथ लीड कर रहे हैं, हमारे लेडीज़ वुमेन लीड करने वाली हैं, इसलिए उन्होंने वाइब्रेंट डेमोग्राफी की बात की। डिमांड इसलिए बात की कि इतनी बड़ी कंट्री में डिमांड हमेशा रहेगी। आज जो विश्व के लोग, जो दूसरे देश हैं, वो इंडिया की ओर वैसे नहीं देख रहे हैं कि उनकी मदद करना चाह रहे हैं। वो इसलिए देख रहे हैं कि हाईएस्ट पॉपुलेशन कंट्री है, वन ऑफ द एजुकेटेड कंट्री बनने जा रही है, यूथ ड्रिवन कंट्री बनने जा रही है। सो डिमांड विल बी हाईएस्ट इन इंडिया। सप्लाईज आर बीइंग लुक्ड बाय अदर कंट्रीज, यू कैन टेक द चार्ज। डिमांड ऑलरेडी है, आपको डिमांड समझना है, डिमांड की दिशा बदलनी है, डिमांड के लिए नए प्रोडक्ट सर्विसेज लानी है, डिमांड को चैनलाइज करना है। मेट्रो से रूरल तक के बीच में जो गैप्स हैं उनको भरना है। इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। जहाँ सरकार कर रही है वहाँ प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी कर रहे हैं, स्टार्टअप्स भी अपनी भूमिका निभाएंगे, और इस तरह से एक पूरे इकोसिस्टम को हम मजबूत कर सकते हैं। ये मैंने जानबूझ के आपके लिए लिखा है। एनी रैशनल गवर्नमेंट दैट टेक्स केयर ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग, कोई भी सरकार या संस्था अगर इकोनॉमिक वेलबींग को देखती है, एडवांसमेंट्स ऑफ इस कंस्टिट्यूएंसी, जिस संस्था को या कंस्टिट्यूएंसी को बारे में सोचती है कि उसका विकास कैसे हो, पेज स्पेशल अटेंशन टू लॉज एंड रेगुलेशंस। आप सुनते होंगे कि बार बार सरकार की ओर से बोला जाता है ईज ऑफ डूइंग इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ये ईज ऑफ डूइंग वही चीज़ है जो लॉज में परिवर्तन लाए जा रहे हैं, रेगुलेशंस में परिवर्तन लाए जा रहे हैं, जिससे कि जो इंडस्ट्री में, स्टार्टअप्स में, व्यवसाय में आने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा चुनौतियों का सामना न करना पड़े। अफेक्टिंग लोकल स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज, विकास कब होता है? जब आपके आसपास छोटे इकाइयों का विकास हो, और वही छोटी इकाइयों का समूह एक बड़ा रूप लेती है, एसएमईज का विकास हो। एंड ऑफर्स अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, जब वो सरकार या संस्था अपॉर्चुनिटी ग्रो करने के लिए साधन, संसाधन और सुविधा देती है। अलाउज मूवमेंट फ्रॉम इनफॉर्मल टू फॉर्मल सेक्टर्स, आज जो आपके इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, उन्हीं इनफॉर्मल सेक्टर्स को ग्रेजुअली ऑर्गेनाइज सेक्टर्स की ओर मूव करना है, जिससे कि सिर्फ आपकी इकोनॉमी नहीं, आपका पर कैपिटा इनकम बढ़े, आपके फैमिली इनकम बढ़े, फैमिली में एजुकेशन, हेल्थ, इन बातों पे खर्च करने के साधन, संसाधन और आय बढ़े।
जो युवा पीढ़ी की बात हो रही थी, जैसा मैंने बताया, जो सोच स्वामी विवेकानंद जी की थी वही सोच हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की भी है, वही सोच आपके संस्थान की भी है, वही सोच हमारी भी है। युवा पीढ़ी ही हमेशा से दिशा बदलती रही है, चाहे वो हमारे इंडिपेंडेंट मूवमेंट रहे हो। आप देखेंगे जो आज जिनको आप शहीद दिवस बनाते हैं वो कौन थे? हमारे 22 साल 23 साल के युवा थे जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा बलिदान से पहले, सिर्फ वंदे मातरम का ही उन्होंने राग लगाया। ये कब संभव है? जब आप में जज्बा हो, आप में एक सपना हो, सपने को साकार करने की क्षमता हो। इससे संभावनाएं जो हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं आपके सफल होने की। आप देखते हैं कि जो स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट रिफ्लेक्ट्स द न्यू इंडिया ड्रिवन बाय एनर्जी, इंथुसियाज्म, एंटरप्राइज ऑफ आवर यूथ। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। ये आपके बीच मैंने क्यों रखा? ताकि आप देश की भावनाओं से पूरी तरह परिचित हो। देश चाह रहा है कि युवा पीढ़ी आगे बढ़े। देश चाह रहा है कि युवा पीढ़ी एक ऐसे भारत की संरचना करे जो पुनः इसको विश्वगुरु माना जाए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, वी हैव ए मिलियन प्रॉब्लम्स बट एट द सेम टाइम वी हैव ऑफर ए बिलियंस ऑफ माइंड्स। 150 करोड़ के बराबर लगभग हमारी जनता आज है। इतनी बड़ी जनता की अगर सोच का छोटा हिस्सा भी समाज के बदलाव, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बदलाव, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट और सर्विसेज के बदलाव की ओर लग जाए तो देश की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। और आप में से कुछ अगर ऐसा कर पाएँ तो आपके संस्थान की भी गरिमा बढ़ेगी। आपके जो यहाँ डीन प्रोफेसर्स बैठे हैं उनका भी सम्मान और स्वाभिमान बढ़ेगा कि हमारा स्टूडेंट जो है आज नेशनल फोरम पे, इंटरनेशनल फोरम पे एक ऐसा अच्छा कार्य कर रहा है। ये शब्द मैं जहाँ भी जाता हूँ बार बार रिपीट करता हूँ, बोलता हूँ। आज मैं जाना जाता हूँ मेरे अपने पेरेंट्स की वजह से, मेरे अपने गुरुज की वजह से, जिन्होंने मुझे ऐसी शिक्षा दी कि जिसको मैं लेकर आगे बढ़ पाया। और कंट्री के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं लगभग सारे एग्ज़ाम्स मैंने क्वालिफाई किए, ज़्यादातर मैंने टॉप किया। इसका क्रेडिट मुझे नहीं है, इसका क्रेडिट मेरे माता पिता को था, जिन्होंने मुझे कभी नहीं पूछा कि तुम्हारे परसेंटेज मार्क्स कितने थे, जिन्होंने कभी नहीं पूछा कि तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा गया। मैं आपको अपनी व्यक्तिगत शेयर करता हूँ। जिन्होंने हॉस्टल में आके कभी नहीं पूछा कि तुम कितने घंटे पढ़े हो, कितने घंटे नहीं पढ़े हो। जिन्होंने मुझे एक बार भी क्वेश्चन नहीं किया कि जब मेडिकल एग्ज़ाम में सेलेक्ट हुआ MBBS क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो। काउंसलिंग में आए पेरेंट्स, मेरे फादर साथ में गए ट्रेन में, घर पहुंचने पे मैंने एक शब्द बोला कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है। एक शब्द नहीं कहा कि पूरे टाउनशिप में मैं अकेला मेडिकल में सेलेक्ट हुआ था कि क्यों नहीं ज्वाइन करोगे। तो उस माता पिता के प्रति हमारा सम्मान होना चाहिए, जिसको पूरा विश्वास था कि ये कुछ कह रहा है तो कुछ कर सकता है। हम अब दूसरे लाइफ के फेज में हैं, 60+ के फेज में हैं। अब मैं इससे आपसे क्यों चर्चा कर रहा हूँ, क्यों आपसे वो शेयर कर रहा हूँ? आपको अब करना है। हमारा दौर चला गया। अब हम संरक्षक बन सकते हैं, मार्गदर्शक बन सकते हैं, मेंटर बन सकते हैं, गाइड बन सकते हैं, एडवाइज़र बन सकते हैं, लेकिन डूअर्स आपको बनना है। डूअर्स अब नहीं हो सकते हैं, ये आपको करना है। ये ऑलरेडी हमने आपको चर्चा कर दी है कि क्यों यूथ को स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्यों आगे बढ़ना है, क्यों आना चाहिए। एज ए यूथ आपको पावर ऑफ इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप हायर होती है। हम में थी, आप में भी है, सब में होगी। एबिलिटी एंड पोटेंशियल जो है वो आपकी अच्छी होती है। नॉलेज सीखने की, ग्रहण करने की, ज़्यादा समय परिश्रम करने की आपकी क्षमता ज़्यादा है। आप क्रिटिकल थिंकर हो सकते हो। हर यूथ है, वो सोचता है कि ये सही है, गलत है, इस दिशा में जाना है, इस दिशा में नहीं जाना है। और यही था कि इंडिपेंडेंट मूवमेंट में कुछ लोग गए कि दे वर ऑल क्रिटिकल थिंकर्स। आज जितने भी लोगों को आप याद करते हो उसकी पहली परिभाषा रखना, दे वर ऑल क्रिटिकल थिंकर्स।
चाहे हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात की, स्वामी विवेकानंद जी की बात की, मोदी जी की बात कर रहे हैं, किसी की भी बात करो आप, जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, दे वर ऑल क्रिटिकल थिंकर्स। उन्होंने उस विषय पे, उस संदर्भ में सोचा ये गलत है, ये सही है, हमें किसी के गुलामी करनी है नहीं करनी है, हमें एक नई सोच रखनी है जमशेदजी टाटा की तरह या नहीं रखनी है, रतन डी टाटा की तरह की टाटा ग्रुप को आगे कैसे लेके जाना है। दे वर ऑल क्रिटिकल थिंकर्स। आपको भी बनना है। आप यूथ हो, आपके अंदर क्षमता है, आप कर सकते हैं। इनोवेटर्स, नई सोच आप में स्वाभाविक रूप से आती है कि ये प्रोडक्ट ऐसा बना, ये लैपटॉप ऐसा बना, तो इसको हम और कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, ये माइक की ऐसे है तो हम किस तरह से इसको रीडिज़ाइन कर सकते हैं। ये आपके अंदर क्षमता है और स्वाभाविक रूप से आपके अंदर सोच आती है। उसी सोच को केवल दिशा देने की जरूरत है। यू आर द चेंज मेकर्स। फ्रॉम प्री इंडिपेंडेंस टू इंडिपेंडेंस टिल टुडे, यूथ्स हैव टेकन द ड्राइव। आप बन सकते हैं, आपको करना भी है। कम्युनिकेटर्स, आपको कम्युनिकेटर भी बनना है। आप जब तक कम्युनिकेटर नहीं बनेंगे, भाषा पे आप नहीं जाइए, हिंदी बोलिए, इंग्लिश बोलिए, किसी भी लैंग्वेज में बोलिए, पहले आपको विषय का ज्ञान होना चाहिए। जब आपको विषय का ज्ञान होगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो भाषा को बिना ध्यान दिए हुए आप कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेट की पहली सोच है किस संदर्भ में आप बात करने जा रहे हैं, क्यों बात करने जा रहे हैं, उसके बारे में पहले सोचें। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएं, ये समझें कि सामने वाले सभी आपसे ज़्यादा ज्ञानी नहीं हैं, तब आप एक अच्छा कम्युनिकेटर बन सकते हैं। अपने इंस्टीट्यूशन में जो भी डिबेट हो, जो भी ग्रुप डिस्कशंस हो, जब भी मौका लगे आप प्रयास करें, पार्टिसिपेट करें। बीआईटी मिश्रा के संस्थान में हमें इनकरेज किया जाता था, एवरी ग्रुप डिस्कशन हमें पार्टिसिपेट करना होता था और हम आकर करते थे। और हर विषय पे हम नहीं जानते थे, हर विषय पे हम नहीं जानते थे, प्रयास करते थे। प्रयास करते करते कभी आवाज़ लड़खड़ाती थी, कभी विषय के बीच में रुक जाते थे। इस दौर से भी गुजरे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो आपका बढ़ता जाएगा और एक समय आएगा जब आप कॉन्फिडेंस से किसी भी जगह खड़ा होकर आप बात करेंगे। तो युवा पीढ़ी को अपने कम्युनिकेशन पे भी ध्यान देना है। लीडरशिप का ये मतलब नहीं है कि पॉलिटिकल लीडर्स का ही कोई रोल लेके आप करें। हर क्षेत्र में लीडरशिप का रोल है। ऑर्गेनाइजेशन के लीडर, आपके डीन डायरेक्टर, आपके वाइस चांसलर, आपके चांसलर, हर आपके डीन, ये सब की लीडरशिप रोल है। वो एक दिशा निर्देश देते हैं जिससे कि हमारे आपके उनके सारे स्टूडेंट जो है वो अच्छा बन पाएँ, अपने अपने जीवन के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर पाएँ। वो लीडरशिप है। आपकी भी लीडरशिप है। लीडरशिप को सही दिशा में रखें, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ रखें और सही सोच के साथ रखें। अब प्रोसेस ऑफ इनोवेशन कब आता है? जब हम स्टैटिक से डायनेमिक मोड पे जाते हैं। एक ठहराव है और एक बदलाव है। जब हम ठहराव से बदलाव की ओर जाना चाहेंगे तभी नई सोच आएगी, संशोधन होंगे। वो कहते थे ना, इन्वेंशन इज मदर ऑफ नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन, कहते हैं ना। जब हमें ज़रूरत होगी तभी हम उस संशोधन, उस दिशा में सोचते हैं। नई सोच की क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें? जिससे कि हम नई चीज़ों का विकास कर पाएँ, नई दिशा दे पाएँ। और जैसे मैंने आपको बताया डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की बात, कि सपना को साकार करने के लिए आपके अंदर पैशन होना चाहिए, जील होनी चाहिए। उस जील को अपील में बदलने का जो प्रोसेस है, जो सोच है, उसको मजबूती से लेके चलना चाहिए। पोटेंशियल इनोवेटर्स या कौन होते हैं? जो आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि जैसे इसी हॉल में घुसा आपने तो कुछ ऑब्जर्व किया, उस ऑब्जर्व को अब जब कहीं जाएं तो बैठ के सोचें दोबारा कि क्या हमने ऑब्जर्व किया, यहाँ क्या बदलाव हो सकता था। डिस्कवर कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, आइडियाज़ को रिफाइन करके
किसी भी संस्थान को, जैसे अभी हम आपसे मिलने से पहले आपके डायरेक्टर साहब ने मुझे आपके वाइस चांसलर से मिलवाया, तो उन्होंने यूनिकॉर्न की बात की कि हमारे कंट्री में यूनिकॉर्न की क्या स्थिति है। तो यूनिकॉर्न्स अभी आपसे चर्चा करेंगे यूनिकॉर्न है क्या, बट कोई भी यूनिकॉर्न हो, किसी लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो, जब आप पैसा अपनी लगाएंगे तो उसका रिटर्न होना होगा। अगर रिटर्न नहीं होगा तो पैसा पूरा लॉस हो जाएगा आपका, यू विल बी ए डेड केस। तो इस पर भी आपको सोचनी है कि आपकी आरओआई कैसे होगी। सिर्फ यूनिकॉर्न नहीं बनानी है आपको, एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। सिर्फ स्टूडेंट नहीं बनना है, एक बदला हुआ भारत का भविष्य बनना है। ये भी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ वो आप पे भी उतना ही लागू होता है कि इस 2 से 4 साल के विषय में आप हर महीना आप सोचें कि हमने क्या बदलाव आया, हमने क्या बदलाव किया अपने में, और क्या बदलाव और ला सकते हैं, जिससे कि 2 साल के बाद या 4 साल के बाद जब आप निकलें आपको महसूस हो कि आपने क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और ये आप खुद सोच सकते हैं, दूसरा आदमी आपको नहीं बता पाएगा। हाउ आई हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड, टू व्हाट डिग्री इट हैज लेड टू मी ए सक्सेसफुल कल्चर, कैरियर एंड लाइफ, वही दिशा आपको बदलेगी। बाकी ये हिस्ट्री की है। और जैसे आपने देखा कि थॉमस एडिसन ने लाइट के बारे में कैसे सोची, आप सब पढ़े हो। पेंटिंग जो है मोनालिसा की आप देखते हो तो हाउ इनोवेटिव इज, रमन इफेक्ट, ये सारी चीज़ें जो हमारे अनुसंधान हुए उसकी एक सोच रही है। उस सोच को आपको समझना है और सोचना है आपको कि वो कर सकते थे तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं, आप क्यों नहीं इस सोच वाली पीढ़ी का हिस्सा बन सकते हैं, ये आपको सोचना है। अब जो विषय है हमारा, मैंने आपको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए कि यूथ का क्या रोल है, आपकी अपनी मौलिक क्या जिम्मेदारी है, ये परिवेश को लाने के लिए मैंने अभी तक बात की थी आपसे, जिससे कि आप पूरी तरह से सिमुलेट हो जाएं कि किस विषय पे आप आज चर्चा सुनने वाले हैं या देखने वाले हैं, करने वाले हैं। वाई स्टार्टअप्स एंड हाउ हायर एजुकेशंस लाइक योर्स can take a big role in transforming you into a new entrepreneur, new leader, new transformer. जैसा आप देखते हैं अमूमन एक स्टार्टअप एक लोकल इकोनॉमी को कनेक्ट करती है। किसी भी इस मेरठ में ही अगर कुछ स्टार्टअप लगेंगे और उसके प्रोडक्ट सर्विस सप्लाई होंगे तो यहाँ की लोकल इकोनॉमी में उसका असर पड़ेगा, लोकल बाज़ार में उसका असर पड़ेगा। कुछ लोगों को नौकरी मिलेगी चाहे सप्लाई करने के लिए, कुछ लोगों को आय के स्रोत मिलेंगे। छोटा उदाहरण जोमेटो का ही लीजिए आप, अगर एक जोमेटो का यहाँ खुला तो सप्लाई करने के लिए कुछ बच्चे तो लगेंगे उसमें, उन बच्चों को जॉब मिलेगा, आय के स्रोत बनेंगे। उसी तरह से कोई भी स्टार्टअप लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट करती है। और जो मैंने ये लिखा है परिभाषा वो आपको ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं करेंगे। इस विषय पे हमने लगभग आपसे चर्चा कर लिया है, जो नहीं किया वो उस पर केवल मैं बात करूंगा। आज आईटी इंडस्ट्री ग्लोबली कैसे ड्राइव कर रही है। किसी भी इंस्टीट्यूशन में मैं तो अक्सर जाता रहता हूँ तो फर्स्ट चॉइस इंजीनियरिंग में बच्चे कहते हैं मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग साइंस चाहिए। क्यों बोलते हैं वो? मार्केट ड्रिवन है वो। तो आपको जब नए स्टार्टअप की बात सोचनी होगी तो ये सोचना होगा सबसे पहले कि वो मार्केट ड्रिवन हो, डिमांड ड्रिवन हो, सप्लाई अपने आप हो जाएगी। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, यू ऑल विल बी सरप्राइज कि हमें इतनी ज़्यादा, चाहे आप जो भी इस्तेमाल अभी कर रहे हो सब में सेमीकंडक्टर का रोल है। 90-95% वी आर इम्पोर्टिंग।
इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल यूथ जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में स्टार्टअप्स या न्यू एंटरप्रेन्योरशिप का रोल का अवसर वो अवेल कर पाएँ। 95% इज बीइंग इम्पोर्टेड इवन टुडे। रिकॉर्ड्स में वेरी 1%, 2%, 5% हियर एंड देयर। अब जाके इस बजट में इस पे चर्चा की गई है, नई सोच रखी गई है। सो आपके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, नए युवाओं के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप ऐसे क्षेत्र का अध्ययन करें जहाँ पे आपको अवसर मिले, जहाँ पे आपके स्टार्टअप या ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेन करने के मौका मिले, ROI की संभावना बढ़े, ब्रेक इवन जल्दी आए। इस तरह की सोच आपको रखनी है। सरकार की ओर से भी इसमें प्रयास किए जा रहे हैं, इसलिए स्किल इंडिया का भी और नए ऑर्गेनाइजेशन की संरचना रखी गई है जिससे युवाओं के स्किल को प्रमोट किया जा सके। आपके ऑर्गेनाइजेशंस भी, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस भी प्रयास कर रहे हैं, जिस पे हम बाद में चर्चा करेंगे कि कहाँ गैप है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और एंटरप्रेन्योर स्किल में। इनक्यूबेशन सेंटर्स भी खोले जा रहे हैं, आपके संस्थान में भी खोले गए हैं। भारत सरकार ने क्यों अटल इनोवेशन सेंटर की संरचना रखी, नीति आयोग किस तरह से इसमें मदद कर रहा है, सुविधाएं उपलब्ध हैं। आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, आपको अपनी सोच बनाने की आवश्यकता है। आपको सोचना है कि जॉब गिवर बनना है या जॉब सीकर बनना है। बड़ा ओपन चॉइस है। जॉब गिवर बनना है, उसके ट्रेड्स अलग हैं। जॉब सीकर्स बनना है, उसके ट्रेड अलग हैं। सोच आपकी है। एक जॉब सीकर बनकर स्वाभिमान से जीना है, लोगों को नौकरी देने की क्षमता रखनी है, या सिर्फ नौकरी का प्रयास करना है। ये चॉइस आपके लिए। जहाँ तक छोटे समुदायों की बात है, MSMEs की बात है, भारत की GDP का 33% हिस्सा ये छोटे इकाइयाँ ही कंट्रीब्यूट करती हैं, और जो हमारा एक्सपोर्ट है लगभग 45% ये छोटी इकाइयाँ एक्सपोर्ट का वो हिस्सा बनी हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि अवसर अच्छे हैं कंट्री के GDP में कंट्रीब्यूट करने की, एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करने की, एंटरप्रेन्योर बनने की। आपके पास अभी अवसर है। इस अवसर को हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना कैसे उपयोग में लाएंगे, ये आपको सोचना है। ये आपके सामने एक बड़ी चुनौती है कि आसानी से इस 2 साल 4 साल के दौर को आप गुजरने देंगे, या इस चुनौती को सामने रखकर अपने आप को उसके योग्य बनाएंगे। जो हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, क्यों, ये सोचना है। उस सोच के लिए मैंने आपके सामने रखा है न्यू एवेन्यूज़, नए प्रोडक्ट, नए सर्विसेज। जैसे आपको बताया, हमारा डिमांड बीइंग द हाईएस्ट पॉपुलस कंट्री, हमारी जनसंख्या जो सबसे बड़ी विश्व की है, तो हमारे सामने हर दिन डिमांड रहेंगे नई नई चीज़ों की। उसको कैसे अवेल करना है वो आपके सामने है। कैसे एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से आप एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं। एक छोटा भी व्यवसाय करेंगे तो 4 से 10 लोगों को आप नौकरी दे सकते हैं। कंपटीशन, मार्केट में अगर मोनोपोली हो गई तो किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस मोनोपोली में होगा। विथ एंटरप्रेन्योरशिप you can challenge that competitive price. You can provide new product and services which are accessible, affordable to customers and target audience. So ये आपके सामने संभावना है। Offering to the society, अच्छे प्रोडक्ट लाएंगे, अच्छे सर्विसेज देंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी। अर्निंग प्रॉफिट, जैसे मैंने शुरू में कहा, कोई भी व्यवसाय सिर्फ सोशल सर्विस के लिए नहीं होता है। उसके प्रति उद्देश्य, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी रखना पड़ता है। उसके बिना सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी आपको। चाहे परिवार से कोई पैसा मिल रहा हो, दोस्तों से मिल रहा हो, आप स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, सस्टेन नहीं कर सकते हैं। सो नेवर थिंक दैट कि बेस्ड ऑन योर फैमिली एंड फ्रेंड्स मनी यू कैन सस्टेन एनी स्टार्टअप और एनी बिजनेस। दैट विल बी ब्लंडर।
दैट कैन बी ए स्मॉल सीड मनी जो शुरुआत करने में थोड़ी मदद करे, बट दैट कैन नॉट बी ए बेस फॉर योर एनी बिजनेस और एनी स्टार्टअप। आइडिया मैंने आपसे शेयर किया। रीजनल और रूरल डेवलपमेंट, मैंने बताया कि जब जो हमारे देश के विकास की जो संरचना है, ज़्यादातर डेवलपमेंट मेट्रोज तक है, उसको छोटी सिटीज़ गांव तक ले जानी है। बहुत बड़ा रोल एंटरप्रेन्योर्स कर सकते हैं। नेशनल जीडीपी को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इनोवेशंस की बात हमने आपसे ऑलरेडी कर दी। प्राइड एंड सेटिस्फैक्शन, जो आपको मैंने बताया कि एज ए जॉब गिवर आपको एक प्राइड, एक स्वाभिमान और सम्मान होगा, वो आप सोच सकते हैं। हर क्षेत्र में, चाहे आपका पढ़ाई का क्षेत्र हो, हर बच्चा ऐसे संस्थानों तक नहीं पहुंच पाता है। संसाधन की कमी होती है, साधन की कमी होती है, चुनौतियां हर जगह है। इस 150 करोड़ 140 से 150 करोड़ की जो हमारी जनसंख्या है, सभी बच्चों को इतना पढ़ाई की सुविधा नहीं मिल रही है, तो वो चुनौतियाँ हैं। उसी तरह से जब आप किसी व्यवसाय में, स्टार्टअप में आएंगे, चुनौतियाँ आएंगी। उस पर मैं विशेष रूप से दोबारा चर्चा करूँगा, लेकिन एक अमूमन इन चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको। देश कैसे आगे बढ़ रहा है उस पर भी सोचना है। आज जो 132 कंट्री की इकोनॉमी की बात होती है, तो हमारा देश 40वां नंबर पे है, जबकि जनसंख्या में पहला नंबर पे है। ये सोचना है कि हम इतना पीछे क्यों हैं, कहाँ हमारा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। शॉर्टेज ऑफ स्किल, हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी है, लेकिन जब हम अभी आपके डायरेक्टर साहब से बात हो रही थी, हम लोग आने से पहले चर्चा कर रहे थे, स्किल सेट की कमी है। एनी ऑर्गेनाइजेशन लुक फॉर सम स्किल विच कैन बी एम्प्लॉयबल इन हिज और हर ऑर्गेनाइजेशन। वो स्किल आपको लानी है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ स्किल की अभी कमी है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, कंप्यूटर का ही डेवलपमेंट वाला बहुत सारा क्षेत्र है, मशीन लर्निंग है। ये जस्ट एग्जांपल लिया हूँ, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, मैनेजमेंट के क्षेत्र हो, आपके फाइनेंस का क्षेत्र हो, जहाँ भी स्किल की कमी है, उन स्किलों की ओर समझना है कि मार्केट डिमांड्स व्हाट, उसी स्किल की ओर फोकस होके आपका अध्ययन और आपको स्किल डेवलप करना है। इन्वेस्टमेंट जो है उसमें भी चैलेंज होता है। जब एसएमईज और स्टार्टअप्स आते हैं तो उनको इनिशियली इन्वेस्टमेंट कैसे करें, कहाँ से फंड मिले, इसकी समस्या रहती है। सेमी कंडक्टर की बात मैंने पहले ही आपको बता दी थी कि हाउ वी आर डिपेंडेंट। पेस ऑफ इंडस्ट्री, जो आज भारत में बदलाव की आवश्यकता है, वहाँ एक बहुत बड़ा चैलेंज या गैप जो है इंडस्ट्री एकेडमिक कोलैबोरेशन की है। इंडस्ट्री knows what they need, but they don't know how to teach and what to train. वो रोल आपका एकेडमिक इंस्टीट्यूशन करता है। तो जब तक दोनों एक साथ नहीं बैठेंगे, जो डिमांड है और जो उसके लिए तैयारी है, वो दोनों एक साथ नहीं हो पाएगा। इसलिए बार बार बल दिया जाता है कि एकेडमिक और इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें। ये एक चैलेंज है आज के डेट में। ईज ऑफ डूइंग, मैंने आपसे जैसे बताया कि सरकार प्रयास करती है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, लॉज में कहाँ कहाँ बदलाव लाए जाए, जिससे नई इकाइयाँ, नए व्यवसाय में जो लोग आएँ उनको कम दिक्कतों का सामना करना पड़े। अगर आप चाहेंगे कि कोई रेगुलेशन, कोई फ्रेमवर्क ना हो, ये संभव नहीं है। लॉ ऑफ लैंड मस्ट एग्जिस्ट। एक आपको छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैं भारत सरकार में था, एशियन एम्ब्रो बैंक आई और एक प्रपोजल, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, प्रभावित करके लेके मेरे पास आ गई। हर्षद मेहता स्कैम जब हुआ था, तो शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, आप लोग यंग हो शायद। उस स्कैम की जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी या जो गाइडलाइन बनी थी, उसको मैं डील करता था। दबाव मुझ पे भी आया था। उसमें 2 गाइडलाइन थी। 100 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए। आप मैनेजमेंट और कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे तो नेटवर्थ समझते होंगे। और दूसरी गाइडलाइन थी 100 अपने कंट्री में रजिस्टर होनी चाहिए। देन ओनली दे कैन यूटिलाइज पब्लिक फंड, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर फंड। बट ये बैंक एक क्राइटेरिया तो मीट करती थी 100 करोड़ नेटवर्थ का, कि वर्ल्ड ग्लोबल बैंक थी, बहुत बड़ा बैंक था। लॉ ऑफ लैंड नहीं करना चाह रही थी। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ लैंड में हमारे दायरे के अंदर सीमित होकर काम नहीं करना चाह रही थी, भारत के सरकार के दायरे में। तो वो प्रभाव करने की कोशिश की। इसलिए कई जगह रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की ज़रूरत होती है।
उसको बिल्कुल भी खुला नहीं छोड़ा जा सकता है कि कोई फ्रेमवर्क ना हो, कोई भी व्यवस्था ना हो। कई जगह उसको बदलाव लाए गए हैं ईज ऑफ डूइंग में, और फोकस है सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीड्योर्स, राशनलाइजेशन ऑफ लीगल प्रोविजन्स, डिजिटलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोसेसेस ज़्यादा से ज़्यादा किए जा रहे हैं, एंड डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ माइनर टेक्निकल और प्रोडक्ट डिफॉल्ट्स। तो इन चीज़ों में बदलाव लाए जा रहे हैं। हो सकता है ये बदलाव जो इंडस्ट्री डिमांड कर रही है, जो सोसाइटी डिमांड कर रही है, उससे कम हो, लेकिन प्रयास जारी है, और हर सक्सेसिव पीरियोडिक रिव्यू में उस पर इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे, आपको हम जो ये जर्नी है, आपको धीरे धीरे मैं पिछले 25-30 मिनट में जो मैं आपको ले गया, उसका उद्देश्य यही था कि जिस मुद्दे पे बात करें उस मुद्दे के वातावरण में आपको लाएं पहले। अब आप ईज ऑफ डूइंग समझोगे, आप ROI की बात करेंगे या किसी विशेष विषय पे जब चर्चा करेंगे तो 5-10 मिनट पहले मेरे बोले हुए कुछ शब्द आपको शायद याद आए, तो आप सिमुलेट होके, मैनेजमेंट में आपको सिमुलेशन बताया भी जाता हो कि वाई सिमुलेशन ट्रेनिंग और कंडीशंस आर बीइंग क्रिएटेड, वो आर्टिफिशियल क्यों क्रिएट किया जाता है, सो दैट फिजिकली एंड मेंटली यू आर अलाइंड एंड यू आर इन दैट बैकग्राउंड, दैट इन्वायरमेंट। ये नहीं कि आप बैठे यहाँ हो, सोच कहीं और की रहे हो, इसलिए सिमुलेट किया जाता है। स्टार्टअप्स में स्टार्टअप इकोसिस्टम है। स्टार्टअप इकोसिस्टम अभी तक मैं चर्चा किया हूँ उसमें आया है, लेकिन क्या एग्जैक्टली है वो आप समझ सकते हो। कल्चर, जब आपके टैलेंट और स्किल की बात कर रहे थे, वो भी आपके स्टार्टअप इकोसिस्टम का हिस्सा है। जब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, वो भी आपके स्टार्टअप इकोसिस्टम। जब हमने ग्लोबल माइंडसेट की बात की, वो भी आपके स्टार्टअप हिस्सा के। जब हमने सिलिकॉन वैली की बात की और कंपैरेटिव एनवायरनमेंट बेंगलोर सिटी में क्रिएट करने की बात की, वो भी आपके स्टार्टअप इकोसिस्टम का हिस्सा है। रेगुलेशंस ऑफ फ्रेमवर्क की बात की, वो भी आपके स्टार्टअप इकोसिस्टम का हिस्सा है। कैपिटल की बात की, फंड की बात की, वो भी आपके स्टार्टअप इकोसिस्टम का हिस्सा है। नो हाउ की बात की, प्रोसेस की बात की, वो भी आपके इकोसिस्टम का हिस्सा है। रिवोल्यूशंस क्यों होने चाहिए, रिवोल्यूशंस क्यों नई सोच आपको लानी चाहिए, वो भी एक स्टार्टअप इकोसिस्टम का हिस्सा है। मार्केट की बात की, वो भी आपके स्टार्टअप इकोसिस्टम का। कम्युनिकेशन की बात की, वो भी आपके स्टार्टअप इकोसिस्टम का हिस्सा है। स्किल की बात की, ये कुछ बातें हमने क्यों इससे पहले की, ताकि आप इकोसिस्टम को पूरी तरह से समझें कि एक इकोसिस्टम एक पूरा इन्वायरमेंट है जो कई मुद्दों से मिलकर एक सामूहिक रूप लेता है, और उसका एक भी हिस्सा कमज़ोर हो तो दूसरे को प्रभावित करता है। अगर हमारा फ्रेमवर्क कमज़ोर होगा तो हमारे पूरे इन्वायरमेंट को कमज़ोर करेगा, हमारी सोसाइटी कमज़ोर होगी, हमारे पूरे इन्वायरमेंट को कमज़ोर करेगी। तो ये इकोसिस्टम को इसलिए कहा जाता है कि इकोसिस्टम को मजबूत किया जाए, उसका उद्देश्य यही है। जब कभी आप इकोसिस्टम की बात हो तो आप समझें कि इसका उद्देश्य क्या है, क्यों इकोसिस्टम की बात हो रही है किसी भी विषय पे, चाहे आपके एजुकेशन सिस्टम के इकोसिस्टम की बात हो, स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात हो। एक बड़े परिवेश में बात की जाती है जिसमें सभी विषय जुड़कर सामूहिक रूप से उसको प्रभावित करते हैं। स्टेक होल्डर्स, किसी भी विषय पे बात करेंगे तो स्टेक होल्डर होगा। फैमिली में बात करेंगे, स्टेक होल्डर कौन है? आपके पेरेंट्स, आप खुद हो, आपके भाई बहन है, आपके दादा दादी, नाना नानी, सारे स्टेक होल्डर हैं। उसी तरह से जब एक सिस्टम में बात करेंगे तो गवर्नमेंट स्टेक होल्डर है, स्टार्टअप कम्युनिटी स्टेक होल्डर है, पब्लिक सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर्स स्टेक होल्डर्स हैं, बिजनेस कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स है, आपका एजुकेशन हायर एजुकेशन स्टेक होल्डर है। ये सारे मिल अपने अपना रोल अपनी अपनी जगह पे देते हैं। इन सारे स्टेक होल्डर्स का एक डिफाइंड रोल है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हो। स्टार्टअप स्टेक होल्डर्स में गवर्नमेंट भी रोल प्ले करती है, बिजनेस कम्युनिटी भी रोल प्ले करती है, पब्लिक सेक्टर भी रोल प्ले करता है, प्राइवेट सेक्टर भी रोल प्ले करता है, आपका अपना एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ये भी रोल प्ले करता है। आज ये रोल प्ले कर रहा है जिसकी वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ। ये एक स्टेक होल्डर आपके डॉक्टर घई, आपके वाइस चांसलर, आपके चांसलर, इन्होंने अपना रोल प्ले किया, इन्होंने मुझे इनवाइट किया, आज आपके बीच में खड़ा हूँ, इस विषय पे चर्चा कर रहा हूँ। सो दिस इज रोल ऑफ वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स। स्टार्टअप इकोसिस्टम मैंने आपसे बात की,
ये सारे मिलके स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाते हैं, चाहे एंटरप्रेन्योर्स हो, स्टार्टअप हो, उसके मेंबर्स हो, इन्वेस्टर्स हो, ये सारे मिलकर स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाते हैं। इंडियन सिनारियो मैंने अब ऑलरेडी आपको चर्चा की। अब नए क्षेत्रों में ज़्यादा रुझान आ रहा है, वो आपको समझना है कि जो टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स है उनमें क्यों रुझान आ रहा है, क्या वो मार्केट ड्रिवन है, क्या वो डिमांड ड्रिवन है, ये सोचनी है आपको। क्या क्या एरिया नया एरिया है। एग्रीकल्चर तो आप साधारण सुनते थे, अब एग्रीटेक आ गया। फाइनेंस आप साधारण सुनते थे, अब फिनटेक आ गया। तो ये जो नए एरियाज हैं वो मार्केट ड्रिवन है, डिमांड ड्रिवन है, सप्लाई ड्रिवन है। तो ये आपको सोचनी है कि क्या क्या एरिया है जो आपको स्टार्टअप को नई दिशा दे रहा है। अभी जो बात हो रही थी यूनिकॉर्न की, आपके वाइस चांसलर साहब ने भी किया, डायरेक्टर साहब डॉक्टर घई बैठे हैं, इन्होंने भी साथ में अभी चर्चा कर रहे थे हम लोग। इसके जो नॉमेनक्लेचर किए गए, ये एक जस्ट नॉमेनक्लेचर है, इट्स नॉट ए बिजनेस, वो कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है। ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप विथ ए वैल्यूएशन ऑफ ओवर 1 मिलियन, ऐसे स्टार्टअप जिनकी वैल्यूएशन, याद रखिएगा वैल्यूएशन एक अलग विषय है, वैल्यूएशन इज नॉट योर नेटवर्थ, जिसकी वैल्यूएशन ओवर 1 मिलियन हो, दे आर कॉल्ड यूनिकॉर्न। सो दैट कि कल आपको कहीं चर्चा में बैठे हों तो आपको लगे कि हाँ यूनिकॉर्न तो हमने सुना हुआ था। एनी एंटिटी विथ वैल्यूएशन ऑफ मोर देन 1 मिलियन, दे आर यूनिकॉर्न्स। सिमिलरली लेस देन 1 बिलियन, दे आर सोनिकॉर्न्स। यूनिकॉर्न्स वो हैं जिन्होंने वैल्यूएशन 1 बिलियन की अटेन कर ली। और इसको एलियन ली ने क्वाइन किया था 2013 में। उन्होंने सोचा कि इस विषय पे चर्चा किया जाए, इसको एक नई दिशा दी जाए, तो उन्होंने इस वर्ड को रखा था यूनिकॉर्न। डेकाकॉर्न जिनकी वैल्यूएशन ओवर 10 बिलियन हो जाए, 10 बिलियन हो जाए। हेक्टाकॉर्न जो ओवर 100 बिलियन हो जाए। ये विषय रखने का ये मुद्दा है कि आप जगह जगह यूनिकॉर्न की बात सोचते हैं तो क्या है यूनिकॉर्न, व्हाट इज हेक्टाकॉर्न, व्हाट इज डेकाकॉर्न, तो उस समय आपको समझ में आ जाए कि दीज आर ऑल डिफाइंड बाई वैल्यूएशंस। आपको क्या दिमाग में रखना है, नॉट नेटवर्थ, नॉट देयर कैपिटल, देयर वैल्यूएशन। ये वैल्यूएशन बेस्ड डेफिनेशंस हैं। एंड यूनिकॉर्न इज 1 बिलियन और मोर देन 1 बिलियन। अब आते हैं स्टार्टअप आप अगर करना चाहें तो किस किस दौर से आपको गुजरना होगा। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंटरनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड जो है, ये DPIT, पहले DPI हुआ करती थी ये, इसकी संरचना भारत सरकार ने की है और इसको ही ये जिम्मेदारी दी गई है स्टार्टअप्स के रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉग्निशन की। भारत सरकार के इंडस्ट्री एंड कॉमर्स का ही एक डिपार्टमेंट है ये। 30 जून का जो आंकड़ा है, करीब 1,40,803 स्टार्टअप रिकॉग्नाइज किए गए हैं। एक प्रोसेस ड्रिवन है, ऑनलाइन है, बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ उसमें जाना है, छोटे छोटे क्वेरीज हैं जो इन्फॉर्मेशन दिए भरने हैं वो भरना है एंड यू विल कंप्लीट द प्रोसेस। इसमें कोई बहुत ज़्यादा इसमें कोई किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है। एनीबडी कैन फिल, ऑल ऑफ यू सिटिंग हियर कैन फिल इट अप। जहाँ तक हमारे भारत की बात है, स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात है, कुछ शहर मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, ये हमेशा से लीड करते रहे हैं। उसकी वजह है यहाँ सुविधाएं उपलब्ध हैं, यहाँ अवसर उपलब्ध हैं, आसपास इंडस्ट्रीज हैं जिससे वो कोलैबोरेट कर पाते हैं। जो हाल का आंकड़ा रहा है उसमें बॉम्बे विश्व स्तर पे 31 पे आ गया है, बेंगलुरु और दिल्ली 20 और 24 पे हैं। जो 3 इमर्जिंग सिटीज़ रही हैं वो चेन्नई, पुणे और हैदराबाद रही हैं। यह दर्शाता है कि दूसरे शहर भी इससे प्रभावित हो रहे हैं, वहाँ के युवा भी प्रभावित हो रहे हैं और इन शहरों के युवा आगे बढ़कर स्टार्टअप को नई दिशा दे रहे हैं। ये आंकड़ा ये दर्शाता है कि वहाँ के युवा कितना प्रभावित हो रहे हैं। ये आंकड़ा ये नहीं दिखा रहा है कि शहर कितना प्रभावित हो रहा है। वहाँ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की सुविधाएं भी हैं, वहाँ बिजनेस सेंटर्स भी हैं। तो ये दर्शाता है कि कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं
और कौन सा शहर प्रभावित हो रहा है। अभी हाल के आंकड़े में जो भारत में 117 यूनिकॉर्न्स हैं, वो लिस्ट आप कभी भी देख सकते हो, इसलिए वो लिस्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इस पर चर्चा करने का वजह ये है कि बदलाव काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से स्टार्टअप्स के वैल्यूएशंस बढ़ रहे हैं और वो एक छोटे स्तर से $1 बिलियन के वैल्यूएशन के स्तर पे पहुंच रहे हैं। एज फार एज स्टार्टअप इकोसिस्टम इज कंसर्न, भारत विश्व के तीसरे नंबर पे है और ईयर टू ईयर जो हमारा ग्रोथ है बहुत ही अच्छा है, 12 से 15% का है, विच इज़ अ वेरी गुड ग्रोथ। स्टार्टअप करने के लिए क्या संरचना होनी चाहिए, उसमें जो प्रावधान है, या तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी हो सकते हैं, या पार्टनरशिप फर्म हो सकते हैं। इन तीनों का ही रिकॉग्निशन DPIT के माध्यम से हो पाएगा। ज़्यादातर हम लोगों का सुझाव रहता है यू शुड गो फॉर ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसके प्रॉस एंड कॉन्स जब आप स्टडी करेंगे, आपके कॉमर्स और फाइनेंस में बताए जा सकते हैं, तो आप पाएंगे कि क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सो वी ऑलवेज सजेस्ट गो फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। पैन कार्ड होना चाहिए, ID प्रूफ होनी चाहिए, एड्रेस प्रूफ ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनानी चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये साधारण मुद्दे हैं, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको बता देगा, ये कोई विशेष मुद्दा नहीं है। NOC रिक्वायरमेंट होती है, इनकॉर्पोरेशन फ़ी होती है, डिजिटल सिग्नेचर्स की आवश्यकता होती है, डीन की डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर्स वगैरह होती है, ये सारे प्रावधान हैं। जस्ट मैं चर्चा इसलिए किया कि आपको लगे कि यहाँ कुछ छोटे मोटे प्रावधान किए जाते हैं और कोई चुनौती नहीं है, बड़ी बहुत ही साधारण प्रावधान है ये। प्रोसेस क्या है, कोई भी स्टार्टअप, उसका पीरियड ऑफ एग्जिस्टेंस 10 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता है। द मोमेंट इट इज़ रजिस्टर्ड एंड मोर देन 10 years इट विल नो मोर बी ए स्टार्टअप। तो उसकी 10 साल की ही वैलिडिटी है, ये आपको ध्यान रखना है। कंपनी टाइप मैंने आपको बता दिया। एनुअल टर्नओवर जब तक आप 100 करोड़ तक पहुंचते हैं, यू विल रिमेन ए स्टार्टअप। 100 करोड़ जैसे क्रॉस करेंगे, आप स्टार्टअप के डेफिनेशन से बाहर हो जाएंगे। एंड यू शुड बी फील हैप्पी कि जल्दी आप इसको क्रॉस करें। शुरू में हमने चर्चा किया, स्टार्टअप मीन्स यू आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू विच इज़ नॉट अवेलेबल। तो ओरिजिनल एंटिटी होनी चाहिए। किसी कंपनी को स्प्लिट करके रीस्ट्रक्चर करके आप बनाएंगे, इट विल नॉट गेट डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप, इट विल नॉट बी रजिस्टर्ड बाय DPIT, इट विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय DPIT। ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप इंडिया की जो संरचना सोची गई, रखी गई, वो इसलिए रखी गई कि आप सब कुछ नया करके लाएंगे, नई बदलाव लाएंगे, नई सोच लाएंगे। इनोवेटिव, जैसा मैंने आपको कहा, और स्केलेबल होनी चाहिए। आज आपका व्यवसाय 1 करोड़ पे है, तो कल 1.5 पे जाए, 2 पे जाए, 5 पे जाए, 1 शहर से 5 शहर पे जाए, 1 देश से 5 देशों में जाए। इसको कहते हैं स्केलेबिलिटी। स्केलेबल हो, बढ़ता जाए, बढ़ाता जाए, सस्टेनेबिलिटी होती जाए। सस्टेनेबिलिटी कब बोलते हैं, जब आपको किसी और से ज़्यादा मदद की ज़रूरत नहीं है, या आपने जो मदद ली बैंक से या कहीं से, उसके प्रावधानों को मीट करते हुए आगे बढ़े। लोन लिया, लोन चुकताते रहे और आगे बढ़े, फिर लोन लिया और चुकताते रहे, आगे बढ़े। इसको सस्टेनेबिलिटी की आवश्यकता है। तो 3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऑर्गेनाइजेशन 10 साल से ज़्यादा नहीं होनी है। कंपनी की टाइप ये 3 ही होनी चाहिए, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड LLP और पार्टनरशिप। 100 करोड़ के टर्नओवर के बाद यू विल नो बी ए स्टार्टअप। स्प्लिटिंग और इंजीनियरिंग रिकंस्ट्रक्टिंग कंपनी नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी ए न्यू एंटिटी। एंड इनोवेटिव एंड स्केलेबल होना चाहिए आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस, देन ओनली इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय DPIT। एंड रिकॉग्निशंस के फ़ायदे हैं वो, आप टैक्स के लिए बहुत सारी बेनिफिट्स हैं, वो यू विल बी एलिजिबल। ये जैसे आपको बताया, दिस इज़ प्रोसेस ड्रिवन। आप जब उसके साइट पे जाएंगे तो आपको पहले अपना बिजनेस इनकॉर्पोरेट करना है किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से। फिर वो जब आप इस्टेब्लिश कर लेंगे
तो इस्टेब्लिश करते समय क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको अपना एक सेटअप होना चाहिए, ऑफिस होना चाहिए, एम्प्लॉइज आपकी टीम होनी चाहिए, आपकी एक सोच होनी चाहिए किस विषय पे आप करने जा रहे हैं, क्योंकि वो DPIT आपको रजिस्टर नहीं करेगी, तो सारी सोच पहले से तैयार होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए आपकी। ये सारी जो आपके क्राइटेरिया है वो मीट करने के बाद देन यू गो फॉर DPIT, देन यू गेट DPIT रिकॉग्निशन। ऑनलाइन करनी है, इमीडिएटली ऑनलाइन आपको रिकॉग्निशन एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ जैसे वहाँ से सक्सेसफुल हो जाएगा आपको आ जाएगा उसका नंबर, रिकॉग्निशन नंबर मिल जाएगा। देन यू कैन गो फॉर दूसरे जो उसके बेनिफिट्स हैं, स्कीम्स को कैसे अवेल कर सकते हैं, देन यू कैन गो फॉर। जैसा आपको बताया मैंने 100 करोड़ टर्नओवर तक आप स्टार्टअप रहेंगे। ऐसा मैंने क्यों आपको दोबारा क्यों रिपीट किया कि जो आपके डेफिनेशंस है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, यू विल बी फिटिंग इन ऑल द 3 कैटेगरीज। और जो MSME के जो बेनिफिट्स हैं, यू विल बी एलिजिबल फॉर दैन बेनिफिट्स, ओनली थिंग यू हैव टू गेट रजिस्टर्ड विथ MSME। सो इसलिए मैं रिपीट किया कि 100 करोड़ में 2 बार क्यों रिपीट, इसलिए रिपीट किया कि अगर आप 5 करोड़ तक हैं यू विल बी ए माइक्रो, यू कैन टेक बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो ऑल्सो विथ MSME रजिस्ट्रेशन। अगर आप 50 करोड़ तक हैं यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री। अगर आप 100 करोड़ के नीचे हैं यू कैन टेक बेनिफिट्स ऑफ मीडियम इंडस्ट्री ऑल्सो। सो ये डेफिनेशंस है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम का, ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि एज ए स्टार्टअप यू फिट इनटू ऑल द 3 एरियाज, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। एंड एज आई सेड, MSMEs are contributing significantly for employment generation, country GDP and export। ये तीनों अहम विषय पर बहुत बड़ा योगदान है SMEs का। तो एज ए स्टार्टअप यू आर ऑल्सो एन SME, इसलिए मैं इसको आपको यहाँ पे लाया और ये आपको दिखाया कि अराउंड 3%, 5% स्मॉल इंटरप्राइज हैं, 1% मीडियम हैं और करीब 94% माइक्रो हैं। सो यू शुड नॉट लूज योर हार्ट। 5 करोड़ तक के व्यवसाय वाले 94% MSMEs हैं। सो देयर इज एनफ अपॉर्चुनिटी टू अवेल एनी गवर्नमेंट स्कीम, टू टेक बेनिफिट, टू थिंक अबाउट ग्रोइंग फ्रॉम वेरी स्मॉल टू ए बिग ऑर्गेनाइजेशन। ये चर्चा इस स्लाइड को दिखाने का मुझे यही था आपके लिए कि आप अचानक नहीं सोचे कि हम बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, 94% SMEs आर माइक्रो ओनली। ये स्टेट वाइज डाटा है आपका, महाराष्ट्र लीड्स फॉलोड बाय कर्नाटका, दिल्ली, यूपी, गुजरात। दीज आर जस्ट डाटा, यू कैन गेट एनीवेयर। सो इस डाटा पे हम विषय नहीं करते हैं। पर्पज़ यही था कि ये स्टेट जो लीड कर रहे हैं वो क्यों लीड कर रहे हैं, दूसरे स्टेट क्यों नहीं कर रहे हैं, वो सोचने का विषय है आपका। एंड यूपी स्टैंड्स 4th जहाँ आप हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। एक आदिवासी महिला कैसे इस व्यवसाय को ले आई। जब एक आदिवासी महिला कम पढ़ी लिखी, बिल्कुल अनपढ़ जैसी कर सकती है, तो आप सब बैठे हुए क्यों नहीं कर सकते हैं। सक्सेस स्टोरी ऑफ मधुकम, ए ब्रांड ऑफ हर्बल हैंड सैनिटाइज़र। जब कोरोना के टाइम पे हर जगह सैनिटाइज़र की ज़रूरत थी, तो अगर आप गांव में महुआ का नाम सुने हो, महुआ को उसने बनाकर सैनिटाइज़र बनाया था, इसलिए हिंदी में बता रहा हूँ आपको। तो एक आदिवासी महिला सोच सकती है, उसकी सोच हो सकती है, तो आप सबों की तो होनी चाहिए। आप तो बहुत अच्छे उससे सवर्ण हैं, सब सुविधाएं मिली हुई हैं, और इसको साइंटिस्ट ने सपोर्ट किया एंड शी कुड बिकम एंटरप्रेन्योर। दूसरी सोच बेंगलुरु का मैंने एक एग्जांपल रखा हूँ आपके सामने कि जो एयरफोर्स जाते थे उन पर क्या चैलेंज होते थे। वेट की वजह से एक चैलेंज होता था। आप जैसे कुछ युवकों ने सोचा कि उसका वेट को रिड्यूस किया जाए, सो इट कैन बी ए वेरी सस्टेनेबल एंड न्यू ड्राइव। और उन्होंने ये बेलिक्स एरोस्पेस जो उन्होंने किया, उसका यही सोच थी, उसका वेट रिड्यूस करके किया जाए। जो इंडिजिनस इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन जो सिस्टम उन्होंने सैटेलाइट के लिए बनाया, उसका टारगेट वही था कि उसका वेट रिड्यूस किया जाए और कॉस्ट रिड्यूस किया जाए। तो हर जगह संभव है चीज़ें। आप अगर पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको नई दिशा दिखेंगी अपने आप। लायंस कट आप सुनते रहते हो, चश्मा वाला। ये कैसे लोगों ने इस साल का
स्टार्टअप ऑफ द ईयर 2024 उसको अभी अवार्ड दिया गया। तो वो आपको सोचने का विषय है कि पीयूष गोयल जी एक 1 बिलियन रेवेन्यू कैसे हिट कर पाए और कैसे उन्होंने अपने रिटेल को ड्राइव किया फ्रॉम स्मॉल टू 2500 रिटेल। एक छोटी सोच की वजह से वो लेके आए, उस सोच की वजह से आज उन्होंने एक 2500 रिटेल स्टोर खड़ा किया हुआ है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बात की। प्रिपरेशन फॉर बिजनेस, आपको प्रिपेयर्डनेस बनानी है। नेसेसरी डॉक्यूमेंट, पैन जो हमने बता दिया आपको होनी चाहिए, सारे रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। बिजनेस एंटिटी का नाम होना चाहिए, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें आपको मैंने डिस्कस कर लिया है। आपका वेबसाइट, एड्रेस, ये सब होना चाहिए। एरिया ऑफ बिजनेस एंड इंटरेस्ट, वो आपको सोचना है कि मार्केट ड्रिवन है, डिमांड ड्रिवन है या नहीं है। आइडिया जो है वो बिजनेस में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं है। टाइप ऑफ एंटिटी मैंने ऑलरेडी बात कर ली। इंटरनलाइजेशन ऑफ ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस हर जगह ज़रूरत होती है। कोई भी आप बिजनेस में करने जाएंगे तो ड्यू डिलिजेंस करना होगा। एंड देन मार्केट रिसर्च आपको करनी है कि कहाँ कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी सर्विस मार्केट में एक्सेप्टेबल है और सस्टेनेबल है। आइडिया टू बिजनेस में डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव, डिफाइन योर स्ट्रेटजी, फाइनेंशियल वायबिलिटी आपको देखनी है, टीम बनानी है जो आपके उस ऑर्गेनाइजेशन को चला पाए, मार्केट अपॉर्चुनिटी और पेनिट्रेशन समझना है, वैल्यू एडिशन एंड यूनिकनेस लाना है कि क्या यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन होगा आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज का, और क्या आप अपने कंपटीटर से अलग देना चाह रहे हैं, वो भी सोचनी है आपको। एंड देन कंप्लायंसेज के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए कि किन कंप्लायंसेज की ज़रूरत होगी। मिनिमम वायबल प्रोपोजिशन प्रोडक्ट की जो बात आपके डायरेक्टर साहब ने भी रिक्वेस्ट किया था कि इस पर ज़रूर आप चर्चा करें, तो आपको जानना चाहिए कि आप अचानक सारा प्रोडक्ट किस तरह से लॉन्च करेंगे, क्या खर्च करेंगे, कितना खर्च करेंगे जिससे आप सर्वाइव कर पाएँ, और एक बार उसको आप वैलिडेट कर लें तो आप उसको स्केल करें। तो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट आपको सोचनी होगी। कैसे MVP जो है वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव से अलाइन होगी, प्रॉब्लम से अलाइंड होगी, और प्रोडक्ट को वैलिडेट करनी होगी। कस्टमर फीडबैक लेनी होगी, कस्टमर फीडबैक के बेसिस पे जो इम्प्रूवमेंट्स है वो लानी होगी आपको, और इम्प्रूवमेंट लाने के बाद दोबारा आपको प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है। तो ये आप करेंगे तो आपको लॉस के चांसेस कम होंगे, मार्केट में आप सस्टेन कर पाएंगे। और प्रोसेस यही है MVP का, लो रिस्क कॉस्ट इफिशिएंसी। एग्जांपल्स में शेयर करता हूँ आपसे। अमेजॉन अर्ली 90s में ये आए, दे स्टार्टेड विथ एन ऑनलाइन बुक स्टोर एंड टुडे यू नो दे आर द ग्लोबल लीडर। Airbnb, उनके दो दोस्तों ने एक बिजनेस आइडिया लिया, उन्होंने अपने अपार्टमेंट के टॉप फ्लोर को रेंट पे दिया, और सैन फ्रांसिस्को में वो रहते थे, तो सोचे इससे कुछ खर्चे के पैसे निकल जाएंगे। एंड इट वाज सो सक्सेसफुल ऑनलाइन उन्होंने उससे किया कि उन्होंने इसको एक वर्ल्ड का ग्लोबल वो प्लेयर बन गए। फेसबुक, यू ऑल नो मार्क जुबेर, he started for Harvard University student and today everybody is in Facebook. Twitter, you know, ये भी अपने एम्प्लॉय के लिए किया था और नाउ इट हैज बिकम ए ग्लोबल प्रैक्टिस। उबर, यू नो। सो ये एग्जांपल इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि हाउ MVP कैन ट्रांसफॉर्म योर बिजनेस एंड हाउ फार दे आर हेल्पिंग यू टू रिमेन ए सक्सेसफुल इन द मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट फिट मैं क्विकली आपको शेयर कर लूँ। एक गुड मार्केट के लिए प्रोडक्ट मार्केट फिट की ज़रूरत है। मार्केट प्रोडक्ट में वही फिट होंगी जो कस्टमर रिक्वायरमेंट को फिट करेंगी, जो कंपटीटर्स से ज़्यादा आपको वैल्यू एडिशन के साथ आएंगी, एफोर्डेबल प्राइस पे आएंगी, एक्सेसिबल होगी मार्केट में। तो ये प्रोडक्ट मार्केट फिट भी आपको समझने की आवश्यकता है, और पीरियडिक असेसमेंट करते रहने की आवश्यकता है कि प्रोडक्ट में कैसे चेंजेस लाया जाए कि मार्केट में आप कंटिन्यू कर पाएँ। सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल क्यों आवश्यकता है, व्हाट डज ए स्टार्टअप ऑफर, व्हाट ए वैल्यू क्रिएशन, ये आपको सोचना है। कैपेबिलिटीज ऑफ बिजनेस आपको सोचनी है, कस्टमर ओरिएंटेड है या नहीं सोचनी है, टारगेट ऑफ द कस्टमर कौन होंगे वो सोचनी है। सर्विस एंड प्रोडक्ट्स आप जो ऑफर कर रहे हैं क्या नया है, कंपटीटर से कितना बदला हुआ है, एंड वाई मार्केट शुड एक्सेप्ट इट, ये आपको सोचनी है। हु ऑल आर योर टीम मेंबर्स, आर दे स्किल्ड एनफ, आर दे आर कैपेबल एनफ टू लीड, ये सोचनी है। एंड रिवेन्यू एंड कॉस्ट मॉडल को भी सोचनी है।
बिजनेस प्लानिंग को सोचनी है आपको। सीड मनी कैसे ज़रूरत होगी, कहाँ से मिलेगी। जैसे मैंने आपको बताया, केवल फैमिली और फ्रेंड्स के भरोसे कोई बिजनेस नहीं स्टार्ट करनी है। यू शुड प्लान दैट सीड मनी is gradually arranged and aligned with some source, be it vertical fund, venture capital, be it some government scheme। सिर्फ फ्रेंड और फैमिली के भरोसे कोई बिजनेस नहीं करनी है। एंड बिजनेस प्रपोजल जो है वो कैसे बनाया जाए, को फंडिंग एजेंसी को एक्सेप्ट किए, इसके लिए भी क्राइटेरिया है, वो आपको समझना है। सो दैट योर बिजनेस प्रपोजल इज सेल्फ स्पीकिंग। वो आपको पूरा किसी भी इन्वेस्टर के पास जाए तो उसको लगे कि हाँ, इस प्रपोजल में दम है, इसको फंड दिया जा सकता है। इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस बिल्ड करे। तो आपके प्रपोजल को बनाते समय ये भी ध्यान देना है कि सिर्फ मार्केट ड्रिवन नहीं हो, इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस कैसे लाएगा वो भी ध्यान रखना है। These are the facets of life cycle of startup। जैसे मैंने बताया, it starts with idea, discovering some problems, coming with some solutions, going for any product or service identification, marketplace orientation, then looking for funding, exploring partners जो आपके बिजनेस को कोलैबोरेट करें, टेक्निकल नो हाउ ला सकें, फंड ला सकें। फंड अरेंजमेंट के बाद यू रीच टू ए स्टेज वेयर आप बिजनेस को स्केल कर सकें, फ्रॉम वन सिटी टू अदर सिटी, फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू मेनी प्रोडक्ट्स, फ्रॉम वन कंट्री टू मेनी कंट्रीज। You can become a local partner, you can become a global partner। Acquisitions and team expansion की बात करनी होगी। दो दूसरे सिमिलर इंडस्ट्रीज हैं, स्टार्टअप हैं या छोटे व्यवसाय हैं, उनको एक्वायर कर लो आप, जिससे आपका स्ट्रेंथ बढ़े। और एग्जिट कैसे करें, कब करें, कैसे करें, इस पे आपको सोचना है। व्हाट इज़ द राइट टाइम ऑफ एग्जिट। हर स्टार्टअप को इसको बहुत ही गंभीरता से सोचना है कि हम स्टार्टअप को किस स्टेज पे लाके एग्जिट करेंगे, सो दैट इट फेचेज वेरी गुड वैल्यू टू यू। तो एग्जिट के बारे में भी बड़ी गंभीरता से सोचनी है। ये उसी पे मैंने चैलेंज को दोबारा आपको ये किया है, जो आपको अभी बताया है मैंने, इस पर ऑलरेडी हमने आपको चर्चा कर दिया है। एग्जाम्पल्स ऑफ इनकन्सिस्टेंसी, जो गलतियाँ होती हैं उस पर मैं चर्चा कर ले रहा हूँ जल्दी से। ओवर स्पेंडिंग करने लगते हैं आप जब नया व्यवसाय करते हैं, ज़बरदस्ती आप एक बहुत सारा प्रोडक्ट एक साथ करते हैं विदाउट गोइंग फॉर MVP और मार्केट फिट। टीम आइडेंटिफाई करने में गलती करते हैं, बहुत सारा हायरिंग कर लेते हैं, कॉस्ट बढ़ा लेते हैं, या तो बहुत कम पैसे से शुरू करते हैं या बहुत ज़्यादा पैसा अचानक खर्च करते हैं। बिजनेस मॉडल को बिना डेवलप किए हुए आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, विच कैनॉट फिट इनटू द मार्केट। एंड अपने मैट्रिसेस को रिव्यू नहीं करते हैं कि जो आपने बनाया वो कहाँ फिट हो रहा है, कहाँ नहीं फिट हो रहा है। वो मैट्रिसेस को रेगुलर पीरियोडिक रिव्यू करना है कि हमारा सारे जो टारगेट्स हैं और एरियाज हैं वो अपनी अपनी दिशा में चल रहे हैं या कहीं कमी है, इमीडिएटली वहाँ चेंज कीजिए। कस्टमर फीडबैक, मार्केट फीडबैक लेके उसको रिव्यू कीजिए। ये एट्रीब्यूट्स हैं। कोई भी स्टार्टअप क्यों सक्सेसफुल होता है, क्यों फेल्योर होता है। जो फेल्योर्स के हैं, नो मार्केट नीड, बिना मार्केट नीड असेस किए आप चले गए, 42% स्टार्टअप फेल हुए। रन आउट ऑफ कैश, पैसे की अचानक खत्म हो गई, आप 30% वैसे स्टार्टअप फेल हो गए। प्रॉब्लम्स विद टीम, टीम जो लेके गए वो टीम अलाइन नहीं रही, आपस में झगड़े करते रहे, वो फेल हो गए। ऑर्गेनाइजेशन फॉर लैक ऑफ विजन, बिना विजन, बिना मेंटर्स के गाइडेंस लिए हुए आप चले गए, फेल हो गए। एंड रॉन्ग बिजनेस मॉडल, 35% स्टार्टअप फेल हुए। जो मार्केट प्राइसिंग एंड कस्टमिंग है, कॉस्ट प्राइसिंग है, बैड क्वालिटी की वजह से फेल हुए 90%, बैड मार्केटिंग की वजह से फेल हुए, रॉन्ग कस्टमर डेवलपमेंट की वजह से फेल हुए, प्राइसिंग या कॉस्ट इशू की वजह से फेल हुए, नो प्रोडक्ट और मार्केट फिट की वजह से फेल हुए, बेटर कॉम्पिटिटर और आउट कॉम्पिटिटर ने आपको आउट वो कर दिया, उसके वजह से आप फेल हो गए, लैक ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट की वजह से फेल हुए, एंड नो मार्केट नीड। तो ये एरियाज हैं जिसकी वजह से आप फेल होते हैं, संभावनाएं रहती हैं, आपको ध्यान रखना है। उसी तरह से स्ट्रेटजीज हैं, पॉलिटिकल, लोकेशन, लैक ऑफ विजन, रॉन्ग स्केलिंग, ये एरियाज हैं जिस पे आपको ध्यान रखनी है। इस एरियाज पर अगर आप ध्यान रखने हैं तो फेल होने की संभावना कम होगी। स्टार्टअप्स जो सक्सेसफुल हुए, चाहे वो पीयूष गोयल जी हो या कोई भी दूसरे हों, क्यों सक्सेस हुए? दे केम विद द विजन, they had a solution for the problem, they had the dream, they were focused and prioritized,
They started with a plan and MVP. They know their customers. They had the perseverance. They never wanted to become overnight success. They were capable of taking risk. Customer satisfaction पे हमेशा review करते हैं. And they could hire right person for the right place. They had been in touch with the mentors. So ये criteria हैं, some attributes हैं which everyone sitting here should remember. Salient features मैंने already आपसे बात कर ली, इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूँ. ये ऑलरेडी आपसे हमने डिस्कस कर लिया था, इसलिए अब जिसकी ज़रूरत नहीं है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जब आप मेच्योर करेंगे, जब आपके प्रोडक्ट होंगे, तब इसकी ज़रूरत होगी कि गो फॉर ट्रेडमार्क, गो फॉर कॉपीराइट और पेटेंट्स. अभी ज़रूरत नहीं है. ये एग्जांपल्स है जस्ट जो मैंने आपको 2-3 एग्जांपल बताया. सी मिस अनीता डोगरा, सी स्टार्टेड विथ 2 सिविंग मशीन एंड टुडे सी इज़ एन एंटरप्रेन्योर ऑफ 800 करोड़ इन कपल ऑफ ईयर्स ओनली. सो वो अपनी बहन के साथ 2 सिलाई कढ़ाई मशीन लेके शुरू की थी और उसकी सोच थी कि हम वेस्टर्न आउटफिट क्यों नहीं महिलाओं को इंडिया में कम सस्ते दाम पे दे सकते हैं. एंड दैट्स हाउ शी कुड कम फ्रॉम 2 सिविंग मशीन टू 800 करोड़ बिजनेस. सो एक नई सोच के साथ वो दोनों बहनें आई और उन्होंने दिशा बदली. बिजनेस मॉडल जो आपकी बात की कि बिजनेस मॉडल क्यों होना चाहिए, जो आपके ड्रकर, आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, ज़्यादातर कॉमर्स के स्टूडेंट, यू मस्ट बी हियरिंग अबाउट पीटर ड्रकर. Being essence of success of startups, attempts to replace strategy as a point of start, to pave competitive advantage in dynamic market-driven environment with innovation and entrepreneurship integral to industry. ये याद रखें, integral to industry. ये मैंने डेवलप किया था, जब मैंने रिसर्च किया था तो नया बिजनेस मॉडल डेवलप किया था कि क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, प्रॉब्लम्स टू सॉल्व, सॉल्यूशन, इनोवेटिव कंपोनेंट्स, पेटेंट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, नीश मार्केट, कंपिटिटर्स ऑफरिंग, key indicators, corporate connect, consumer penetration and customer segment. ये सारा मैंने ध्यान रखा था. कॉस्ट इनकर्ड, एंड मैंने फाइनेंस की बात की थी कि कॉस्ट कैपेक्स, आपके प्रोफेसर्स बता देंगे व्हाट इज़ कैपेक्स. व्हेन यू नीड मनी फॉर इक्विपमेंट, ऐसी चीज़ों के लिए आपको पैसे की ज़रूरत होती है तो यू गो फॉर कैपेक्स. और ओपेक्स, जब ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है तो इन सारा चीज़ों को करके. एंड देन कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन, की रिसोर्स प्रोसेसेज, रिवेन्यू मॉडल एंड टीम एंड वैल्यूज, इन सारों को ध्यान में रखते हुए मैंने बिजनेस मॉडल रखा था जिससे कि स्टार्टअप को वो हेल्प मिल सके. आई थिंक आई हैव कवर्ड. जहाँ तक स्कीम की बात है, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है जो DPIT के माध्यम से भी है और MSME के माध्यम से, जो आप आसानी से अवेल कर सकते हैं. आपको उसके लिए और सारा चीज़ डाटा है. इसको दोबारा भी हम लोग कभी बता सकते हैं. आपके मैं भेज दूंगा एक आर्टिकल आपके डायरेक्टर साहब को, ही विल शेयर विथ ऑल ऑफ यू. जो आज के डिस्कशन का जो संदर्भ है कि आप एक नई सोच लेके जाएं. जब दूसरे शहर के युवा उस शहर की परिभाषा बदल सकते हैं, उस शहर को भारत के रोड मैप में ला सकते हैं, तो आप मेरठ से भी ला सकते हैं. आप भी स्टार्टअप, न्यू एंटरप्रेन्योरशिप की दिशा में सोच सकते हैं. अकेले या कुछ स्टूडेंट साथ मिलकर एक नई संरचना की बात समझ सकते हैं. और अगर आपको लगे कि आपकी कुछ सोच एक नई दिशा दे सकती है तो एक नए एंटिटी का स्वरूप भी दे सकते हैं. इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपना डिस्कशन यही ख़त्म करूँगा. आपके यू शुड बी लकी दैट ए वेरी professional and leadership driven person is with you, Dr. Ghai. He has a very good vision for your institution. और हायर एजुकेशन आपके आइडियाज़, आपके थॉट प्रोसेस को ड्राइव करके ट्रांसफॉर्म कर सकता है. हायर एजुकेशन आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है. इंक्यूबेशन सेंटर जैसे रिक्वायरमेंट की व्यवस्था करता है. एक्सपर्ट्स हमारे जैसे और भी लोग आते रहते हैं आपके बीच, उनको यहाँ लाते हैं. क्यों? ताकि वो आपकी सोच बदले, आपको बताएं कि इस कैंपस के बाहर क्या सोचा जा रहा है, आपको बताएं कि एक छोटे इंस्टीट्यूशन के लोग, छोटे शहर के लोग कैसे अपने शहर, देश की दिशा बदल रहे हैं. कैसे एक छोटा सा गांव से निकले हुए लाल बहादुर शास्त्री जी
देश के ऐसे प्रधानमंत्री बने जिसकी कल्पना बहुत कम लोग कर पाते हैं। बहुत ही साधारण व्यक्तित्व के आदमी, नदी तैर करके पढ़ने जाते थे, कोई सुविधा संसाधन नहीं था। ये हायर एजुकेशन आपको सुविधा दे रहा है। तो हायर एजुकेशन ये सारे सुविधाएं आपको दे रहा है और वो एक नई दिशा दे सकता है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू this university which is providing such amenities and avenues to all of you with such eminent professors and deans sitting here who are guiding you, transforming you and bringing professionals like us to share their vision and thoughts. Thank you. I would like to thank you for the most interesting talk. It could not go unnoticed the effort put into your preparation to come and entertain us today. We all gained tremendous volume of information listening to you, and as you said in the beginning, that we have opportunities and challenges for our youngsters to be an entrepreneur. I am sure that you encouraged several of our students and faculties here today to start their research on startup as soon as possible. Thank you for your time, sir. I request our convener, Dr. R.K. Ghai, sir, to join us on the stage to present a memento. First and foremost, I extend our heartfelt gratitude to our distinguished guest speaker, Dr. Pramod Kumar Sinha, for sharing your valuable insights and expertise with us today. Your knowledge and experiences have provided us with a wealth of information and inspiration. We are truly honored to have had you, sir. I express my heartfelt thanks to management, Honorable Vice Chancellor, sir, respected convener, Dr. R.K. Ghai, sir, and all HOIs who have always been supportive of our initiatives and encouraged us to strive for excellence. I extend my heartfelt thanks to all my faculty members, students, media, technical experts, and all those who have made this event possible. Thank you one and all. Have a good day. I request the students of Fine Arts for National Anthem. Jana Gana Mana Adhinayak Jaya Hai Bharat Bhagya Vidhata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravid Utkal Banga Vindhya Himachal Yamuna Ganga Utkal Jaladhi Taranga तव शुभ आमे गाहे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता जय है जय है जय है जय 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 है जय